Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, we will discuss next new Q card. Must prepare it for your speaking exam. If your exam is in upcoming days, week, or month, must prepare it in order to get desired band scores. So, let's know which Q card it is. Which Q card is going to be discussed here. Describe a famous scientist you know about. You are supposed to cover the following cues. First one is who he or she is, how you know him or her. Next आएगा what he or she invented, and last cue is and explain why he or she is famous. Okay, so sorry for this mistake because what लिखना था और यहाँ पे WHST मैंने लिख दिया. Sorry for this mistake. Now, let's quickly read my sample answer. Please watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So, let's dive into this video. Well, I have always had the greatest fascination for science subject. Well, I have always had, always मेरी रही है क्या, greatest क्या रहा है, fascination, captivation, attraction, okay, interest रहा है साइंस में. For science, साइंस की तरफ मेरा क्या fascination, fascinated रहा हूँ, attracted, okay, interested रहा हूँ इसमें. So fascination for science subject. I know about numerous a lot of many काफ़ी सारे जो renowned scientists के बारे में मैं जानती हूँ. Renowned, famous, well known, okay, popular scientists के बारे में who have proved their mettle in the field of science. जिन्होंने अपना who proved their mettle. Prove one's mettle, it means लोहा मनवाना. Okay, लोहा मनवाना. Prove one's abilities, prove one's capabilities. Okay, capacity, abilities, capabilities. अपना लोहा मनवाना. Prove that. प्रूव करना दैट हाउ टफ वन इज़, हाउ स्ट्रॉन्ग वन इज़. ओके, सो अपने आप को प्रूव करना, अपना लोहा मनवाना. ओके, सो इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में सच एज जिन्होंने अपना लोहा मनवाया. ओके, बहुत सारे काफ़ी सारे जो न्यूमरस रिनाउंड जो फेमस हैं ऐसे साइंटिस्ट के बारे में मैं जानती हूँ. सच एज कौन कौन से एग्जाम्पल दे देंगे. APJ अब्दुल कलाम, चार्ल्स डार्विन, थॉमस एडिसन, आइजक न्यूटन एंड सो ऑन. ओके, सो ये वाले हैं. ओके, एग्जाम्पल्स दे दी हमने. हाउएवर, बट यहाँ पे हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए किसके बारे में, किसके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन. आइंस्टाइन के बारे में, साइंटिस्ट जो हुआ है. ओके, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट. ही वॉज वन ऑफ द इलस्ट्रियस या फिर फेमस, वेल नॉन, जो भी आप whatever you want to say you can say. So illustrious means celebrated, जो famous, well known, okay, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव किया, accomplishments, okay, accomplish किया हो. So उसके लिए बोलेंगे illustrious. okay, so वो रहा है जो one of the जो illustrious scientists रहे हैं of the 20th century, उनमें से एक है. He was born in, वो कहाँ पे जन्मा है, he was born in Germany in 1879. फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, उसके जो अर्ली चाइल्डहुड से अपने जो अर्ली चाइल्डहुड से वो क्या था, ही शोड साइंटिफिक इंक्लिकेशंस मीन्स इंक्लाइंड रहा है किसकी तरफ, वो इंक्लाइंड रहा है टुवर्ड्स साइंस. ओके, साइंटिफिक इंक्लिकेशंस उनकी उसकी रही हैं, मीन्स वो क्या रहा है, उनका झुकाव रहा है साइंस की तरफ. ओके, उन्होंने साइंस की तरफ अपना झुकाव जो है वो दिखाया. ओके, फ्रॉम हिज early childhood he showed scientific implications and desired to explore science very well. और desire किया या फिर wanted आप बोल सकते हो. ओके, अर्ली चाइल्डहुड से वो इसमें इंटरेस्टेड था. ओके, और उसने क्या wanted या फिर wished, ओके, या फिर desired क्या, एक्सप्लोर करने का, साइंस को एक्सप्लोर करने का very well. Now let's move forward. Moving ahead, I came to know about this fabulous person. Moving ahead, आगे चलते हैं. I came to know, मुझे पता चला इस पर्सन के बारे में, दिस फैबुलस जो समथिंग, समवन दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ओके, मार्वलस, रिमार्केबल, वंडरफुल. सो इस पर्सन के बारे में मुझे पता चला है. इस पर्सन के बारे में आई केम टू नो अबाउट दिस फैबुलस पर्सन व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th में थी. ओके, पढ़ रहा था. देयर वाज अ चैप्टर अल्बर्ट Einstein and his achievements in my English book. So there was a chapter of, जो chapter है क्या, Albert Einstein इस name से, and his achievements in my English book, मेरी English book में थी. In that chapter I read about his life as well as
अबाउट हिज कमेंडेबल टास्क। कमेंडेबल मीन्स जो प्रशंसा योग्य है, ओके, या फिर आप बोल सकते हो अप्रिशिएबल, ओके, एबल टू बी अप्रिशिएटेड, ओके, अप्रिशिएट के योग्य है, ओके, मीन्स प्रशंसा योग्य है, कमेंडेबल। सो उस चैप्टर में मैंने पढ़ा अबाउट हिज लाइफ, उसके लाइफ के बारे में, एंड अबाउट हिज कमेंडेबल टास्क एज वेल, उसके जो कमेंडेबल टास्क हैं उनके बारे में। टॉकिंग अबाउट हिज इन्वेंशंस, उसकी इन्वेंशंस की बारे में बात करें तो ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग, वो जाना जाता है किसके बारे में, फॉर इंट्रोड्यूसिंग, क्या इंट्रोड्यूस करने में, द थ्योरी ऑफ लाइट, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, and the relationship between mass and energy and many more. Einstein's discoveries led to modern day inventions like paper towels, solar power, stock market forecasts and laser pointers. जो आइंस्टाइंस की डिस्कवरीज थी, जो इन्वेंशंस वो जो उन्होंने डिस्कवर किया, लेड टू किस चीज़ को बढ़ावा दिया, किसकी तरफ मीन्स किस चीज़ को बढ़ावा दिया, किस में कंट्रीब्यूट किया, क्या किस चीज़ में हेल्प की, मॉडर्न डे इन्वेंशंस, जो मॉडर्न डे इन्वेंशंस अभी के जो मॉडर्न टाइम में वो जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो इन्वेंशंस लाइक पेपर टॉवल, सोलर पावर, स्टॉक मार्केट फोरकास्टर्स एंड लेज़र पॉइंटर्स, ओइंग टू हिज एक्सेप्शनल उसका जो कुछ वखरा, ओके, जो वंडरफुल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, रिमार्केबल जो उसका टैलेंट था, उसकी वजह से, ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, या फिर ओइंग टू, उसके कारण, क्या, उसके टैलेंट के कारण, आई एम वन ऑफ हिज ह्यूज फैंस, या फिर आई एम वन ऑफ हिज ह्यूज फैंस, या फिर एडमायरर्स, जैसे हम बोलते हैं आई एम हिज ह्यूज फैन, ह्यूज बड़ा, ओके, जो एडमायरर्स में से, फैंस में से एक हूँ, वन ऑफ हिज ह्यूज एडमायरर्स मीन्स उनमें से एक हूँ। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स वाई आइंस्टाइन इज इमेंसली पॉपुलर, इमेंसली, एक्सट्रीमली, वेरी, ओके, काफ़ी ज़्यादा, ओके, पॉपुलर है, इमेंसली, एक्सट्रीमली। सो इसके प्लेंटी ऑफ अलॉट ऑफ मैनी, काफ़ी सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दैट, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है इज़ दैट ही ऑलवेज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये इडियम है, दिस इज़ अ वंडरफुल इडियम टू बी यूज्ड, इट मीन्स थिंक डिफरेंटली, come up with wonderful ideas, come up with wonderful like solutions to the problems. So हट के सोचना, ओके, सो उसको जो पर्सन बोलता है उसके लिए हम बोलते हैं ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। सो ऑलवेज उन्होंने हट के सोचने की आदत थी उनकी, वो सोचते थे, थॉट, think, thought, okay, so always, because we are talking about past, so we are supposed to use thought, okay, think, thought, so सोचते थे, his insights, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग समथिंग, उसकी वजह से फंडामेंटली, मुख्य तौर पे उसने क्या किया, चेंज द वे वी लुक एट द यूनिवर्स। सो उन्होंने हमारा जो पर्सपेक्टिव था, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो, चेंज्ड आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी उसकी इनसाइट्स, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसने क्या किया, चेंज्ड आर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग यूनिवर्स, रिगार्डिंग स्पेस, ओके, टाइम, रिगार्डिंग एवरीथिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया, जो यूनिवर्स को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा जो वे है देखने का यूनिवर्स को, ओके, सो उसको चेंज कर दिया उसने, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, हिज इनसाइट्स फंडामेंटली चेंज द वे वी लुक एट द यूनिवर्स, या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं हिज अंडरस्टैंडिंग, ओके, हिज इनसाइट्स चेंज्ड आर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग जो यूनिवर्स, टाइम के रिगार्डिंग, यूनिवर्स के रिगार्डिंग, ओके, सो उसको चेंज कर दिया, हमारा जो पर्सपेक्टिव है। Secondly, he wows the world by publishing his theory of relativity, which has made many new technologies possible. उसने he wows या फिर he impress किया वर्ल्ड को, क्या पब्लिश करके, अपनी जो थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी, जिस थ्योरी ने हैज़ मेड मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज पॉसिबल, जिसने मैनी आगे आने वाली काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज को पॉसिबल, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, ओके, सो काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को पॉसिबल किया, विच हैज़ मेड मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज पॉसिबल। एडिशनली, इसके अलावा, सिंस ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, ओके, चढ़ती कला विच रहने वाला, ओके, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ओके, पेसिमिस्टिक एक होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक। सो एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एंथुजियाज्म,
और एक क्रिएटिव पर्सन था बाय नेचर। ही एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इन्यूमरेबल, या फिर आप बोल सकते हो काउंटलेस यंग जनरेशंस। सो जैसे कि वो ऑप्टिमिस्टिक था, एंथुजियास्टिक था, फुल ऑफ विम एंड विगर एनर्जी। ओके, सो एंथुजियाज्म के कारण, क्रिएटिविटी के कारण वो बाय नेचर था, क्रिएटिव पर्सन था। सो इस चीज़ ने एक्ट किया एज अ सोर्स के तौर पे, इंस्पिरेशन के सोर्स के तौर पे फॉर इन्यूमरेबल, काफ़ी सारी जो यंग जनरेशन्स थी उनके लिए एक्ट किया एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ड्यू टू हिज मार्वलस जॉब, उसकी जो मार्वलस जॉब, जो उसने काफ़ी बढ़िया काम किया था, ओके, मार्वलस, रिमार्केबल, वंडरफुल जॉब्स जो उसका काम था, उसकी वजह से ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1981। फाइनली मैं कहूँगी अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ माई रोल मॉडल, मेरा रोल मॉडल है, एंड माई ऑल टाइम फेवरेट साइंटिस्ट, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट साइंटिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।